अरे हटाओ, लाइव चल रहा है यार, इंटरनेट कितने वर्ष से करा। अरे अरे ठीक है इंखाना इटा वो इंखान खान का खाके ओए रेडी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया। सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस द जॉइनिंग ऑफ फॉर्मर एमएलए फ्रॉम रहमा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा, जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा दिया टू स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर। आज वो ऑफिशियली तिपरा मोता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज द प्रेसिडेंट ऑफ तिपरा मोता विजय कुमार रंखौल। यहाँ में हमारे टीएम हैं फ्रॉम रहमा वैली राजेश त्रिपुरा, एमडीसी श्री रविंद्र देबर्मा, रुनिल देबर्मा, वंशी कुमार त्रिपुरा एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ में गणेश देबर्मा, और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देबर्मा भी यहाँ में हैं। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को, और फॉर्मेलिटीज क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज जॉइन तिपरा मोता। वी वेलकम हिम टू द फैमिली ऑफ तिपरा मोता। वेलकम भाई साहब, हम सबको धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा टू give a few words to all of you all. इसके बाद you can ask any question. We will be happy and most welcome to give you the answers. ভাই ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা জানেন আমি 2018 কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে প্রাইমারি বিলেজ থেকে নির্বাচিত হয়েছে, এবং আমি আইপিপি 2014 থেকে আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমার আইপিপিতে, এবং দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি একটা আঞ্চলিক দল আইপিপির সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমাদের বিভাগরা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে যেহেতু বিভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছে দেশের ত্রিপুরাসা, আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে যে মহারাজ আমাদের জন্য যে মাঠে নেমছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজাদের কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে ত্রিপুরা মোতার কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা, এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আপনারা জানেন সবাই আইপিপি যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড ইকুয়াল ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপুরাসার উন্নয়নের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে ময়দান এনেছে। আমরা সবাই, আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থাকতেই পারে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলতেই পারে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজাকে সহযোগিতা করা এবং মহারাজা একা নয়, আমরা সবাই ত্রিপুরাসা আছে, 12 লক্ষ ত্রিপুরাসা। আমি 12 লক্ষের মধ্যে আমিও এই দলনের ত্রিপুরা আমিও এখানে আছি। এই সময়ে মহারাজাকে সাহায্য করা এবং মহারাজার হাতে হাত মিলে আমরা কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আজকে আমার সাথে
ফুল আমাদের রাইমা ভ্যালি নেতৃত্বে রয়েছেন আর কমসে কম 100 জনের লিডার রয়েছেন আজকে এবং আগামী দিনে আসবে এবং আগামী দিনে বিভিন্ন দল থেকে আসবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু আইপিপি নয়। আমি শুধু রাইমা ভ্যালি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য রংতরাই ভ্যালি থেকেও পর্ব থেকেও এমপি থেকেও অনেকটা কয়েকটা জায়গার থেকে বিভিন্ন দল থেকে আমরা আইপিপি মহারাজা দলে সামিল হব এবং বিভিন্ন লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এবং বিভিন্ন এমএলএরাও রয়েছেন। তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজের যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা থাকবো এবং সহযোগিতা করবো, হাতে হাত মিলে আমরা তাকে মহারাজার সংগঠন আমরা সামিল হব। সবাই সব লিডাররা এখন যোগাযোগ রয়েছেন, আপনারা দেখবেন। বর্তমান এটা জাস্ট একটা প্রতিদিন আপনারা দেখছেন বিভিন্ন দল থেকে আসছেন। এখন আমাদের মহারাজা ছাড়া এই আমাদের রাজ্যের 12 লক্ষ ত্রিপুরা ছাড়া কেউ মুক্তি দেওয়ার মতো আর কোনো মনে হয় না। বিভিন্ন লিডাররা আছে, বিভিন্ন আইডেন্টিটি নিয়ে কাজ করে, কিন্তু প্রকৃত লিডার, আমরা প্রকৃত লিডার দরকার। আইপিপি হয়তো বা 2009 থেকে দীর্ঘ বছর ধরে একটা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা সাথে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আইপিপি গার্জেন ছাড়া গড় হয়ে গেছে এবং আইপিপি সেই গার্জেন ছাড়া গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে ত্রিপুরাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক, আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এই যে ত্রিপুরাসা, আমি দফায় সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফায় যে 7 বছর জন্য, সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। Any questions that you have? अगर कोई सवाल है? सर मेरे एक सवाल 2018 का जो इलेक्शन है तब से आप लोग त्रिपुरालैंड को लेकर आईपीएफटी बीजेपी के साथ अलाइन हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल में जो त्रिपुरालैंड का जो प्लान था आपका वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया? एक्चुअली आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आईपीपी गलत किया विदाउट डिटेल। ये आप लोग जानते हैं ये आईपीपी का सबसे ज़्यादा यूथ लोग ने काम किया है 2016, 17, 18 जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ आईपीपी का होता है। उसके बाद 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज में कंपेल जो घर में विदाउट गार्जियन, तो उस घर में कितने दिन रहेंगे वो सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो सबके लिए जो इसलिए त्रिपुरा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं, हम लोग एज ए त्रिपुरा अभी महाराजा के साथ हैं, इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ। तो आप लोग जब आईपीएफटी में थे, जब 4.5 साल तक त्रिपुरालैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो बीजेपी वालों ने अपना साथ नहीं दिया क्या? आप लोग ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स एमएलए डिसिप्लिन में बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने त्रिपुरालैंड के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ, आप लोग जानते हो। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ क्योंकि जिस घर में गार्जियन नहीं है उस घर में तो इतना दिन नहीं, आप लोग देखा है ये, और मैं बोलने का कोई जरूरत भी नहीं, आप लोग जानते हैं। जिस डिमांड को लेके आप लोग आए थे, এনসি বাবু তো রয়েছে, এখন আপনি একটু আগে বললেন যে আপনারা বোর্ড নেই ও সেইভাবে রয়েছে, এনসি বাবু তো রয়েছে, ওনার কাছে কি আশা আছে আজ পর্যন্ত? আপনারা জানেন আমাদের এনসি দেববর্মা আমি শ্রদ্ধা করি, সিনিয়র লোক, সেই তো ওখানে অসুস্থ
যদি একজন ফাউন্ডার অফ আইপিএফটি এবং যে গার্জেন তাই নিয়ে যদি অসুস্থ তো ওই গার্জেন ওই গড় কীভাবে বুঝছেন? धनंजय, जिस डिमांड को लेके आईपीएफटी पॉपुलर हुआ था ट्रिप्रालैंड का, उसको आप लोग फुलफिल क्यों नहीं कर पाए 4.5 साल में? और अब एक बार भी आप लोगों ने असेंबली में उठाया नहीं, एक एमएलए के सिवा आपने भी कभी उठाते हुए नहीं देखा? ना, मैंने बोला था, मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ, मैं वो उसका प्रूफ भी है मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है, ये नहीं कि एमएलए लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उस मुद्दा को हम लोग कभी रेस्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है कि वी डोंट सपोर्ट ट्रिप्रालैंड डिमांड, बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने इवन निर्मला सीतारमन ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है 1300 करोड़ का, अलग पैकेज वो लोग बोल रहे हैं। आप लोग कितने इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए आप ये पैकेज वाला ये ना बोलने से अच्छा है। पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरा मेन मुद्दा महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग तो इसलिए हम अभी त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है उस गार्जियन अभी कमजोर हुआ, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ है। तो वो तो पार्टी का अलग बात हुआ, गार्जियन लेस, पर फिनेंशियल बेनिफिट के सिवा कैसे डेवलप? आप देखें 4 साल में जो त्रिपुरा में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने की जरूरत है। स्पेशली एडीसी एरिया में अब क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो एडीसी में क्यों नहीं? एडीसी में कुमिलों में करो स्मार्ट सिटी, वाई नॉट? Dhananjay, do you feel that development has not happened in the tribal areas under BJP 1? क्या आपको लगता है कि भाजपा के सरकार के जमाने में आपके पूर्वी पार्टी आईपीएफटी भी एक पार्टनर, तो भाजपा आईपीएफटी की सरकार में ट्राइबल्स के डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? एक दूसरा सवाल सर, जब आपने बोला अभी कि विदाउट गार्डियन है आईपीएफ, तो हाल ही में एक मसला सामने आया था कि आपके पूर्वी पार्टी के एक लीडर प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद आपके फाउंडर लीडर केम बैक एंड सेड आई एम द वैलिड प्रेसिडेंट, उसमें काफी चर्चा भी हुआ। तो क्या आपको लगता है ये जो इंटरनल टेक ओवर ऑफ लीडरशिप था आईपीएफटी में, क्या ये कहीं पे रिस्पॉन्सिबल रहा होगा कि आपका आईपीएफटी गार्डियन लिस्ट होकर बुलंद है? क्या उसके उसमें कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा? एक्शन ऑफ कुछ रिस्पॉन्सिबल था इस बार? देखिए आप लोग मीडिया वालों के आप लोग के पास सब लोगों की खबर है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन सा लीडर क्या हुआ है, आप लोग के पास सब खबर है। मैं एक्स्ट्रा बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो अभी त्रिपुरा में जो पिछली सरकार के जो डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, स्पेशल आप बोलो ना एडीसी में क्यों 5,000 करोड़ भेजो? लास्ट बजट सीजन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो एडीसी में कितना करोड़ दिया? तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ इक्वल होना चाहिए, राइट टू इक्वल है, सबको इक्वल के देखो, डेमोक्रेसी सबके समान है, सबके राय पे। आप अगरतला में 1,000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, एडीसी कुमिलों में करो। आप अगरतला में स्मार्ट सिटी आप कर सकते हैं, कुमिलों में करो। एक डेमोक्रेसी कंट्री में सबके समान होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए। तो डेवलपमेंट से नहीं होगा। हम लोग त्रिपुरा का जो आइडेंटिटी कहा वो उसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। Government should think about the identity. और कोई सवाल होगा तो इसका क्वेश्चन का सवाल है, जब कोई त्रिपुरा मौका में ज्वाइन करता है तो कंडीशन की ज्वाइन करता है। अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है तो वो पहले से यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑपरेशन भूषण कुमार त्रिपुरा है, ये ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं त्रिपुरा मौका में आऊँ।
धनंजय आया है, ही इज नॉट सेट मुझे टिकट दो मैं तीसरा कोटा में आऊँगा। जब ऋषिकेतु आज से 2 साल पहले आया, उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा। ये नॉन अनकंडीशनल पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन दफा के लिए काम करने के लिए आता है। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन प्रेसिडेंट इंडिया, आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हंसो, नो ऋषिकेतु ने कभी भी अपना टिकट के लिए निगोशिएट करके दूसरा मौका में आए। दे हैव कम बिकॉज दे वांटेड टू सर्व द तोहफा और निकल गए। वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद होता है, इलेक्शन के 1 महीने बाद। चुनाव को लड़ना ही है, तो एलिजिबल कैंडिडेट किसको आप करेंगे? आप भी मिल लीजिए, अगर आप काम करेंगे आप ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का लिए इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन होगा 13 लाख त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। अगर आपको कैंडिडेट रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफ गार्डिंग आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है। इसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तिपरासा उसी को वोट, तिपरा मोथा को क्यों वोट करेगा कि तिपरा मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज तिपरा मोथा में नहीं है, लेकिन अपने एरिया में 0 है, क्योंकि पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक डिमांड समथिंग। तिपरासा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली वेट, प्रेसिडेंट आई एम देयर, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है फॉर ग्रेटर पीपल। अच्छा एमएलए बाबा फाइने सालो तेबो एमएलए रो फाइने कक मारक तो तंग अब जरा फाइकल ना যোগাযোগ ফাইট दं বিভিন্ন দলের ফাইনাল কারণ ক্ষেত্রে ফাইট दं যদি মহারাজা যেহেতু তিনি গার্जेन যতन कबई दं अजरागा जों एजे तिप्रासा हिसाबै जों तामो साबो तामखायाबो नायावै उष्ण तरजायवै तामो जराबो महाराजानि जे ग्रेटार त्रिपुरानि जे যতन कबई दं जों खायना এবং ফাইনাল আগামী দিনে আবার এবং বিভিন্ন বিচারক যোগাযোগ থাকে। I think President would like to say something, please. যতন পাইকাম থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমাদের